السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون، میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عسکری قیادت سے آج بھی مثالی تعلقات ہیں، کسی معاملے پر ابہام نہیں، طریقہ کار میں ابہام تھا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاملے کو غلط رنگ دیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے انٹرویوز کی مخالفت ان کی جانب سے کی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملات طے پا چکے ہیں، پروسیس جاری ہے، تقرری جلد ہوگی اور فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ عسکری قیادت سے آج بھی مثالی تعلقات ہیں، کسی معاملے پر ابہام نہیں تھا لیکن طریقہ کار میں ابہام تھا، معاملے کو غلط رنگ دیا گیا، طریقہ کار درست ہو گیا ہے اور معاملہ بھی حل ہو گیا ہے، اب کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کو سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر داخلہ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کے لیے انٹرویوز کی مخالفت کی۔ افغانستان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ دی ہے کہ افغانستان میں حالات کیسے ہیں اور ہم نے کیسے اسے مینج کرنا ہے۔ موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب چیز سیٹل ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹ پرائم منسٹر کو جا رہے ہیں۔ کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملات طے پا چکے ہیں، پروسیس جاری ہے، تقرری جلد ہوگی اور فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا۔ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں، سول ملٹری تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ اس وقت جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا۔ کوئی نہ فوج میں حکومت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، افغانستان میں عدم استحکام سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے نامساعد حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ان کی وفات عظیم قومی نقصان ہے۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر ڈاکٹر عبدالقدیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملک کے لیے گراں قدر خدمات ہیں، پاکستان میں ہزاروں ڈاکٹرز عبدالقدیر پیدا ہونا چاہیے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ افسوسناک ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ ایوان ڈاکٹر عبدالقدیر کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات عظیم قومی و ملی نقصان ہے۔ وہ پاکستان کے ایسے ہیرو تھے جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر انتہائی نامساعد حالات میں اہم ترین کردار ادا کیا اور ذاتی زندگی میں ایسی قربانیاں دیں جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ایک افسوسناک بات ہے۔ آج ہم ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا پچھلے 20-21 سال میں، یہ قوم جو ہے ان سے معافی کی خواستگار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جام کمال نے وزیر اعظم کو بلوچستان کے سیاسی بحران پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ حکومت نے بلوچستان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا۔ بلوچستان کی افرادی قوت ملک کا اصل اثاثہ ہے۔
जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद कर दिया है। बोले तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने पर मेरे बेटे को मनपसंद वजारत की ऑफर की गई है। दूसरी जानिब वजीर आला जाम कमाल का इलेक्शन कमीशन को खत, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर की तैनाती की तरदीद कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला बात शिकवे शिकायत से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात तक आम पहुंची। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने वजीर आला बलूचिस्तान पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, जाम कमाल ने मनपसंद वजारत की ऑफर की। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि हम अपने फैसले पर डटे हुए हैं, जाम कमाल को हर हाल में ओहदा छोड़ना पड़ेगा। उसने हर जोर लगाया मुझे मेरे बेटे को, उसकी तो जरूरत नहीं थी कि उसका कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरे बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर है ना। दूसरी जानब वजीर आला जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल के खत की कोई हैसियत नहीं, ताहाल पार्टी का सदर हूँ। सदर के होते हुए सेक्रेटरी जनरल को कायम मकाम सदर मुंतखब करने की सिफारिश का कोई अख्तियार नहीं। सेनेटर अनवारुल हक काकर ने कहा है कि पार्टी में चंद दोस्त हैं जो चाहते हैं सूबाई क़यादत तब्दील हो। ये गिरोह अक़लियत में है, उनमें से अक्सर लोग वापस आ जाएंगे। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत पर कोई चार्ज नहीं जिस पर तब्दीली की बात की जाए। वज़ीर आज़म जाम कमाल और उस्मान बुज़दार अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जो इंटेंशन उन्होंने ज़ाहिर की थी उस वाइड का फ़ायदा लेकर जो चंद एक ऐसे अनासर थे कि उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के सो कॉल्ड अबूरी सदर इम्पोज करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह जाम कमाल साहब भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पूरे करेंगे, जनाब उस्मान बुज़दार भी पूरी करेंगे। ये जो ख्वाब व ख़याल की दुनिया में रह रहे हैं कि तब्दीली कहीं से शुरू हो के कहीं पे उसका ख़ात्मा होगा, मुझे लगता है कि वो विशफुल थिंकिंग ही रहेगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मच्छर ने खौफ व हिरास फैला दिया है। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर ने अब तक 5 अफराद की जिंदगियां छीन ली हैं। DHO ज़ईब ज़िया ने तस्दीक कर दी है, बताया है कि एक दिन में मजीद 125 शहरी मच्छर के काटने से अस्पताल पहुंच गए हैं। जुड़वा शहरों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार हमीद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना के बाद डेंगू मच्छर की जलगार। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर ने अब तक 5 अफराद की जिंदगियां छीन ली। DHO ज़ईब ज़िया ने बताया कि एक दिन में मजीद 125 शहरी मच्छर के काटने पर अस्पताल पहुंच गए। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 1500 से तजावज कर गई है। PIMS में 67, पोली क्लिनिक में 70, फेडरल जनरल हॉस्पिटल में 203, CDA हॉस्पिटल में 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पोली क्लिनिक में डेंगू के फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने बताया कि इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इस्लामाबाद में मजबूरी तौर पे जो केसेस हैं, अगर देखा जाए तो लास्ट 2 वीक से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पोली क्लिनिक की जो बात है तो हमने अभी लास्ट 24 आवर में 13 पेशेंट दाखिल किए हैं, 15 को डिस्चार्ज भी किया है। इस वक्त पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में 40 पेशेंट ज़ेरे इलाज हैं। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 94 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हुए। अस्पताल में ज़ेरे इलाज 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त को एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों के साथ मुंसलिक कर दिया है। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि केस में कोई शवाहिद नहीं है, अब तो नैब ने इन दलाल का जवाब देना है। मरकजी अपीलों के साथ ही इस दरख्वास्त को भी देख लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आप मरियम नवाज की जमानत मंसूखी क्यों चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया मरियम नवाज जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ट्रायल को मुसलसल इल्तिवा में डाल रही हैं। 8 मौके पर मरियम नवाज की जानिब से इल्तिवा मांगा गया, जमानत की रियायत खत्म की जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या जमानत मंसूखी के लिए नैब के यही
ग्राउंड्स हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा मरियम नवाज के वकील तो कल भी दलाइल देकर गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई शवाहिद नहीं है, अब तो नैब ने इन दलाइल का जवाब देना है। मरकजी अपीलों के साथ ही इस दरख्वास्त को भी देख लेंगे। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब दरख्वास्त पर समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आजाद कश्मीर के जिला हवेली कहूटा में दुल्हे की गाड़ी हादसे का शिकार बन गई। दुल्हा, वालिद और दादा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए। 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तरबेला के करीब हवेली के इलाके में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। दुल्हे की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। दुल्हा और उसके घर वाले ख्वाजा बशीर नामी शहरी के घर आए हुए थे। बारात में दुल्हा और उसके वालिद, दादा दुल्हा के फूफा और चाचा गाड़ी पर सवार होकर करीबी कब्रिस्तान पर फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे थे कि गाड़ी ख्वाजा बांडी बाजार के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में दुल्हा और दुल्हे का वालिद, दादा, चाचा और फूफा शामिल हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने गंदम के सरकारी निर्ख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम के सरकारी निर्ख 4875 मुकर्रर किए हैं। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज बलोच, कहिएगा नोटिफिकेशन में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत ने 100 किलोग्राम गंदम की जो सरकारी निर्ख है उसकी कीमत मुकर्रर कर दी है। 100 किलोग्राम की कीमत जो होगी 4875 रुपए। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ख़ुराक मुकेश कुमार चावला का हवाले से कहना है कि सिंध हुकूमत कल 15 अक्टूबर से सरकारी गंदम, फ्लोर मिल्स और चक्कियों को जारी करना शुरू करेगी और उसके साथ महकमा खुराक को हुक्म भी दे दिया गया है कि डिफॉल्ट लिस्ट में शामिल मिल हैं उनको गंदम रिलीज करेंगे। काबीना ने 15 अक्टूबर से सरकारी गंदम की अजरा करने की मंजूरी दी है। सही, तो सरकारी निर्ख तो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अमल दरामद किस हद तक होता है ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हाफिज बलोच, आपने हमें आगाह किया। कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन बसों की मजीद 40 बसों की दूसरी खेप रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। विफाकी हुकूमत के मुताबिक कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज आइंदा माह होगा। शहरियों को टूटी फूटी बोसीदा बसों से छुटकारा मिल जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें पहले ही कराची पहुंच चुकी हैं। मजीद 40 बसें रात 11 बजे कराची पोर्ट पर पहुंचेंगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। ग्रीन लाइन एयर कंडीशन बसों में 200 से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। और शहर कायद से खबर यह है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 अजला में सड़कों पर, फुटपाथ और थानों के बाहर से तजावुजात को ठिकाने लगा दिया गया है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंसदादे तजावुजात अमले ने जिला बस्ती में खूब तोड़ फोड़ की। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जियाउद्दीन अस्पताल से रेलवे क्रॉसिंग और वाहिद कॉलोनी के अतराफ से तजावुजात को ठिकाने लगा दिया गया। जिला शर्की में भी सोले बाजार थाने के अतराफ से तजावुजात का सफाया किया गया। ऑपरेशन में रोड और फुटपाथ पर कायम पथारे, ठेले, चबूतरे, सीढ़ियाँ, दीवारें मसमार कर दी। सड़क पर गैर कानूनी तौर पर कायम सनशेड, तंदूर, पंक्चर का सामान, मुर्गी के पिंजरे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान इंसदादे तजावुजात सेल के अफसरान, इंतजामिया पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी भी मौजूद रही। कराची में टैंकर माफिया सरगर्म, शहर कायद में पानी नायाब, महंगे दामों में पानी की फरोख्त जारी है। वाटर हाइड्रेंट में टैंकर्स की लाइनें, मगर इलाकों को पानी नायाब हो गया। कोई 1 माह से तो कोई कई दिन से पानी से महरूम है। बदुज़्ज़मा रिपोर्ट कर रहे हैं। घरों में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और यहाँ टैंकर भरते हुए भी सैकड़ों गैलन ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। दिन भर कितने टैंकर कहाँ कहाँ जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ज़रा मेरे साथ रहें। कराची के घरों में पानी नायाब, मगर टैंकर माफिया को खुली छूट। बड़े हाइड्रेंट में पानी टैंकरों की महंगे दामों फरोख्त, कोई न सका उसको रोक। हजारों गैलन पानी के टैंकर तो भरते हैं, जो जाया होता है इसका कोई हिसाब नहीं।
शहरी बिलबिला उठे, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हमें रोज टैंकर डलवाना पड़ता है। हमारे यहाँ इतने फ्लैट की कंस्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से हमारा पानी तो शॉर्ट हुआ है, बाकी लोग भी वो कहाँ से पानी भरे। गवर्नमेंट का जो पानी है, जो वाटर बोर्ड वाले हैं नहीं खोलते, 15-15 दिन के बाद खोलेंगे, घंटा 2 घंटा, और जब खोलेंगे लाइनें सारी फटी हुई हैं। अब पैसों पे जो चीज़ मिलेगी वो वाकई सही होगी ना। अब स्कूल में हमें फ्री पानी मिल रहा है, वो कौन सा सही होना है। बेबस शहरियों का गिला है कि बोरिंग का पानी पीने से बीमार पड़ गए हैं। टैंकर माफिया को कोई रोकने वाला नहीं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप खुदकशी कर ले, बस पानी नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं आपको, मिलेगा ही नहीं पानी। ऊपर बैठने वाले पानी बेच रहे, नीचे वाला पानी कहाँ से देगा? भर भर के लाते हैं, कहीं कुएं का पानी पी रहे, गुर्दे की बीमारी है मुझे, किस लिए? ये बोरिंग का पानी पी रहे हैं, तबाह कर रहे हैं हम अपने। शहर कायद में बहुत से इलाकों में पानी एक माह नहीं आता, मगर वाटर बोर्ड बेखबरी की नींद सो रहा है। कराची में पानी बहुत है, मगर आपके लिए और मेरे लिए नहीं। ये पानी उसे मिलेगा जो पैसे देगा। कैमरामैन आतिफ खान के साथ मजीद जमा, न्यूज़ 1 कराची। और नाज़रीन, किसी भी माशरे में तहजीब व तमद्दुन और सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए कुतुब और लाइब्रेरीज़ को बेहतरीन अक्कास तसव्वुर किया जाता है। जिस माशरे में लाइब्रेरीज़ और कुतुब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो माशरा तरक्की किए बगैर नहीं रह सकता। हमारे मुल्क में तलबा और तालिबात की लाइब्रेरी से दूरी के हवाले से देखते हैं लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की ये रिपोर्ट। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है, ये मकूला तो हमने बारहा सुना है, लेकिन जैसे जैसे नौजवान दिन ब दिन जदीद टेक्नोलॉजी से करीब तर होते जा रहे हैं, किताब दोस्ती दम तोड़ती जा रही है। कोई भी मुसन्निफ अपनी जिंदगी भर की तहकीक, तजर्बे और सोच को अल्फाज का लिबास पहनाता और उसे किताब के पिंजरे में कैद कर देता है, जिसे सिर्फ वही शख्स आजाद कर सकता है जो इसका मुतालिया करता है। किताब पढ़ के इसकी डीप समझने में बंदे को मदद मिलती है। आजकल आपने देखा होगा कि ये लाइब्रेरी किताबों की कोई वक़्त नहीं रही, किताबें हमारी फुटपाथ पे बिक रही हैं। डीजी लाइब्रेरीज पंजाब डॉक्टर आयशा सईद ने कहा कि अफसोस है कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम किताब से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। लाइब्रेरीज तो मौजूद हैं जहां मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने वालों के अलावा बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादा तादाद तो यहाँ पे उन लोगों की आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर जो अपने थीसिस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं रिसर्च बेसिस पे, या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं। लेकिन जो आप नौजवान कह रहे हैं कि वो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, तो ये तो एक्चुअली एक ग्लोबल चेंज है। ग्लोबली पिछले 2 साल में जो पूरी दुनिया है वो सब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट होगी हुई है। असातिज़ा कहते हैं आजकल पैसे की दौड़ है, नौकरी के लिए बच्चे सिर्फ नसाबी किताबों का मुतालिया करते हैं, ताहम इंसानी शख्सियत को निखारने वाली किताबें जो लाइब्रेरीज में दस्तयाब होती हैं उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी नसाबी किताबों को कंसल्ट टीचर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो कर लेते हैं, लेकिन जो है वो लिटरेचर से बहुत दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया ने आके इस चीज़ को बहुत दूर कर दिया है। तलबा कहते हैं कोशिश होती है लाइब्रेरीज जाएं, लेकिन वक्त नहीं मिलता। लाइब्रेरीज की अहमियत तो बहुत है, लेकिन वक्त ही कुछ ऐसा आ गया कि टाइम बहुत कम मिलता है। हमारे कोर्सेज वगैरह में मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, मल्टीमीडिया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन लोगों की होती है यूट्यूब पे, वहाँ से ज़्यादातर बुक्स डाउनलोड की जाती हैं और देखी जाती है एज कम्पेयर टू लाइब्रेरीज। जिस तरह हर चीज के फलने फूलने के लिए बेहतरीन माहौल की जरूरत होती है, इसी तरह किताब बीनी को फरोग देने के लिए हर शहर में लाइब्रेरीज का होना भी जरूरी है। आज हम तरक्की की दौड़ में दुनिया से पीछे क्यों हैं, इसका अंदाजा लाइब्रेरीज की वीरानी से लगाया जा सकता है। अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो अपनी लाइब्रेरीज को फिर से आबाद करना होगा। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ यह है कि मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मतलूब दहशतगर्द आरिफुल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मतलूब दहशतगर्द आरिफुल्लाह मारा गया। और PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। PIA हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र 3000 के करीब अफराद का इंखला किया। PIA ने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, IMF समेत दीगर आलमी इदारों और आलमी मीडिया के इदारों के सहाफ़ियों का इंखला किया और कप्तान और अमले की जान खतरे में डाली। इससे कबल अफगान तालिबान ने इंतबाही बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि काबुल इस्लामाबाद फ्लाइट से किराया कम किया जाएगा, बसूरत दीगर PIA ऑपरेशन की इजाज़त मुअत्तल कर दी जाएगी।
खबर है ताइवान से, जिसकी 13 मंजिला इमारत में हौलनाक आतिश ज़दगी से 41 अफराद हलाक और कई दर्जन जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। ताइवान के शहर काओस्यूबिंग में वाक़ई इमारत में रात भर आग भड़कती रही, जिससे दर्जनों अफराद फंस गए। फायर ब्रिगेड और इमदादी एहलकारों ने इमारत की ऊपरी मंजिलों पर फंसे 62 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हुक्काम के मुताबिक 41 अफराद झुलसकर हलाक और कई दर्जन जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक इमारत की निचली मंजिलों पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। और मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। कहीं यखबस्ता हवाओं का राज है तो कहीं गर्मी के डेरे हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद रुई के गाले बिखर गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब में बादलों ने बसेरा कर लिया। कराची में दिन भर गर्मी का राज रहा। मुल्क में मौसम का अंदाज निराला, मिजाज हैं बिगड़े बिगड़े। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पारा नुक्ते इंजमात से नीचे आ गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादियां बर्फ से ढक गईं। झील, दरिया, नदी किनारे सफेद मोती बिखर गए। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी का हुस्न मजीद निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी में दरख्तों ने सफेद पोशाक पहन ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। जुड़वा शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला में मौसम अबर आलूद, बादलों की आंख मचोली जारी। उधर कराची में सूरज जोर दिखाने लगा। गर्म हवाओं से शहरियों के चेहरे मुरझा गए। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई लसबेला और सिब्बी में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी टीम वर्ल्ड T20 कप में शिरकत के लिए कल दुबई रवाना होगी। ट्रेनिंग सेशन के आखिरी रोज खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। कौमी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर मशकें की हैं और खामियों को दूर किया है। कोचेस ने भी इंटरनेशनल टीमों से निमटने के लिए कामयाबी के गुर बताए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।